So, in the earlier lecture, I talked about Indian philosophers, right? So, they are atomic philosophers, means who talked about atoms. ठीक है? So, first is the Indian philosopher, then Greek philosopher. I talked about these. Now, today I will discuss with you the modern atomic theory. So, Anthony Lavoisier, he worked on the elemental analysis. Elemental analysis के ऊपर उसने काम किया and he identified oxygen and hydrogen, जो main जो चीज थी. And then there is another person, Joseph Proust. उसने क्या किया 1754 से लेके 1826 तक लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात की. And he said in his work that chemical compounds always combine in constant proportion. ये चीजें आपने कहाँ पढ़ी हैं? केमिस्ट्री में, राइट? And the work of these two French scientists, these both are the French scientists, they motivated John Dalton to propose the modern atomic theory. Means ये जो observations थी इन दो persons की, इनके basis पे जॉन डाल्टन ने क्या किया? He proposed the modern atomic theory. Right? And what was that? In a new system of chemical philosophy, he summarized his work. New system of chemical philosophy में उसने अपना काम जो था वो summarize किया. Right? He summarized his work. New system of chemical philosophy. Then, what he summarized? Let me talk about that. Modern atomic theory. It's based on the experimental observation. What John Dalton proposed? He proposed that each chemical element is made up of atoms with unique properties, and these atoms combine to form the chemical compounds. So that means एक तरह से experimentally हमें ये idea लगने लग गया कि different जो compounds थे वो अलग अलग तरह के atoms से मिलके बने हुए हैं, और हर एक एटम की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है. ठीक है? और कब की बात है ये? इट्स 1766 to 1844. After that, another theory is also there. That is the theory of light. तो दो चीजें, दो पैरेलल फिलोसफीज एट ए टाइम काम कर रही थी आसपास, कि एक तो लाइट, दूसरे वो अल्टीमेट पार्टिकल जिसे सब कुछ बना हुआ. अभी तक हमारे पास लाइट एक अलग चीज थी एंड द मैटर इज ए सेपरेट थिंग. लाइट को हम सेपरेट मान के चल रहे थे और मैटर को हम अलग. लाइट एंड सेपरेट बोथ आर द सेपरेट थिंग्स. सो सेपरेट फिलोसफीज चल रही थी. सो इवन अल-हैथम 965 से लेके 1040 तक he talked about optics. किसकी बात की? ऑप्टिक्स की. He discussed the behavior of light and this leads to raise a question. और कब बात की? 1011 से लेके 21. And he talked about, और एक क्वेश्चन कम अप जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी लाइट के बारे में, उससे एक क्वेश्चन रेज हुआ. एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? इज लाइट ए पार्टिकल और वेव? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देन रॉबर्ट हुक 1635 से लेके 1703 में ही प्रपोज्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है? एंड इट वाज रिटन इन माइक्रोग्राफिया में उन्होंने ये चीज लिखी in 1665. And Huygens, you heard about Huygens principle. So Christian Huygens is also talked about wave theory of light in Treatise on Light. इस पे उन्होंने Treatise of Light में इसकी बात की. कब की?
कि लाइट है क्या, इट्स अ वेव और अ पार्टिकल? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर दैट थ्योरी ऑफ लाइट, उसी को कंटिन्यूशन में आइजैक न्यूटन ने, देखो लुक एट हियर 1690, ठीक है, उसी के आसपास 1642 से 1727 के बीच में ये न्यूटन का इरा रहा। एंड इन दिस इरा he proposed that light is different than wave and light is made up of tiny particles and known as corpuscle, and it is known as corpuscular theory of light, means tiny particles से light जो है मिलके बनी हुई है, एक नई चीज निकल के, मतलब सबकी अपनी सपोजिशन थी। बट जो हाइगन ने बात की, he talked about wave theory of light in treatise on light in 1690, and this theory, this wave theory of light, this dominated the corpuscular theory of light. इसकी ज्यादा डोमिनेंस रही उस टाइम, तो न्यूटन की थ्योरी को वेटेज नहीं मिल पाई, ठीक है। Then there is another theory, let me talk about that. That is black body radiation and photoelectric effect. This leads to the particle nature of light. तो 1790s के आसपास वेव थ्योरी की डोमिनेंस रही। लेट मी गो बैक 1690 के आसपास इट्स वेव थ्योरी इज डोमिनेटिंग। उसी के आसपास न्यूटन ने भी अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी की बात की। बट 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में एक नई थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई, दैट इज द, और वो किस चीज का कंसीक्वेंस था? इट इज ए कंसीक्वेंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दीज टू experimental observations leads to a new concept, that is the particle theory of light. And in the beginning of 20th century, light is considered as a particle and whose energy is E is equal to nh nu. N is the integral value, h is the Planck's constant, and nu is the frequency of light. तो ये एक तरह हम मैटर की बात लगे करने, दूसरी साइड हम किसकी बात लगे करने? वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द लाइट, कि लाइट है और वो कैसी होगी, इज इट ए पार्टिकल और ए वेव? तो पहले वो वेव थी, अब बोला नो इट्स ए वेव बट बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल। दैट मीन्स वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज ड्यूल नेचर ऑफ तो 1900 तक पहुंचते पहुंचते हमें ये एक नया कंसेप्ट हमारे उसमें ऐड हो गया। क्लियर? देन डाल्टन ने ये पीछे थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कब आई? जॉन डाल्टन ने जो दी 1766 और 1844, मींस ये बोल सकते हैं इट्स राउंड अबाउट 1800 के आसपास, राइट? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड। बट व्हाट इज देयर इनसाइड इट? नाउ व्हाट पीपल स्टार्ट डूइंग, दे स्टार्ट लुकिंग इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर जो नहीं है कुछ और, वो भी हमें देखना है, पीपिंग इनसाइड द एटम। और वी कैन से दैट now a new journey has been started, and that journey is known as journey of subatomic physics. अभी हमने खुद को रिस्ट्रिक्ट कहां तक किया था? We have restricted ourselves only up to the atom. And now a new journey has been started, and that is the journey of subatomic physics. एटम से छोटा तो नहीं है कुछ, कैसे पता लगा? वैक्यूम ट्यूब्स पे लोग काम कर रहे थे, हाई प्रेशर पे, सॉरी लो प्रेशर पे और हाई पोटेंशियल पे, ठीक है? ये वैक्यूम ट्यूब्स है, इट्स अ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है? वैक्यूम मींस ऑलमोस्ट बहुत कम प्रेशर है, गैसेस ऑलमोस्ट हमने यहां से निकाल दी हुई है, ठीक है? खाली है बिल्कुल, नो गैस इज देयर, थोड़ा बहुत कंटेंट रह सकता है। एंड वी अप्लाइड वेरी हाई पोटेंशियल अक्रॉस दीज ट्यूब्स, एंड देन दे हैव सीन ये कलर्स,
these colors. So किसने स्टार्ट किया? JHW Giesler. He worked on vacuum tubes और साइंस को कहां ले गए? एटम के अंदर. स्टार्ट लुकिंग इनसाइड द एटम. मोटिवेट किया एंड दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. गीजलर ने डिस्कवरी रेज की गीजलर डिडंट डिस्कवर्ड कैथोड रेज, बट दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. So a Giesler tube is an early used to demonstrate the principle of electric glow discharge. Electric glow होगा discharge tube में, similar to modern neon lighting जो होती है. ट्यूब्स में जो लाइट हमें दिखती है आजकल, नियॉन लाइट्स जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरह की दिखती है. तो ये Giesler ट्यूब्स हैं. आई हैव टेकन ऑल दीज फोटोग्राफ्स फ्रॉम द विकिपीडिया. ठीक है, ये Giesler ट्यूब्स थी. तो Giesler ट्यूब्स आई सबसे पहले एग्जिस्टेंस में. मींस हम क्या कर रहे थे? वी आर अप्लाइंग very high potential in the vacuum tubes and we have seen glow, right? This is one thing and this is very interesting. After that, cathode rays came into existence. John Hittorf, he worked with Giesler vacuum tubes. Giesler vacuum tubes से काम करना और स्टार्ट किया Hittorf ने. And 1869 में what he noticed that glow seems to emerge from the cathode straight line. बोलते जो ग्लो निकल रहा है कैथोड से, मीन्स जो कैथोड था, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट को हम कैथोड बोल रहे थे, वहां से एक ग्लो इमर्ज हो रहा था एंड दैट इज इमर्जिंग इन ए स्ट्रेट लाइन. कहीं से लाइट आ रही है, ये ट्यूब है मान लो, यहां से लाइट आ रही है, ये कैथोड था, हाई पोटेंशियल था, यहां किया हुआ हमने. ये कैथोड, ये एनोड. इट्स अ वेरी हाई पोटेंशियल. यहां से ग्लो आ रहा था इस साइड को, मीन समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस साइड. एंड व्हाट वाज दैट? सो Goldstein cathode those as cathode rays. कैथोड से इमर्ज हो रही थी, देन Goldstein called those as cathode rays. जो किसने डिस्कवर की? जॉन हिटॉफ ने. Named Hittorf's discovery as cathode rays in 1876. 69 में ऑब्जर्व किया जॉन हिटॉफ ने एंड देन Goldstein ने he called those as what? कैथोड रेज. अब ये है क्या कैथोड रेज? कोई नई चीज मुझे दिख रही है. नाउ वी हैव टू नेम इट, व्हाट इट शुड बी. ये क्या होगी, कैसी दिखती होगी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने बोला दिस मे बी ए न्यू फॉर्म ऑफ लाइट. दिस मे बी ए न्यू फॉर्म ऑफ लाइट. नई लाइट की फॉर्म हो सकती है क्योंकि लाइट निकल रही थी, राइट? तो लाइट थी, अभी पता नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टीज का पता नहीं कि लाइट है कि नहीं है, बट ही प्रपोज दैट इट शुड बी लाइट. बाद में कुछ और काम हुआ इसके ऊपर. एंड व्हाट वाज दैट? विलियम क्रूक्स, एक ब्रिटिश केमिस्ट हुआ एंड ए फिजिसिस्ट, ही शोड दैट कैथोड रेज मस्ट बी कॉर्पस्कुलर इन नेचर. Means they're like particles. They're not a, that's not a wave. ये लाइट क्या थी? लाइट क्या होती है? लाइट तो वेव है, लाइट को तो हम वेव मान के चल रहे थे, बट अब लाइट नहीं है, ये पार्टिकल है. कैसे पता किया होगा? ये एक्सपेरिमेंट था. ये क्रूक्स ट्यूब है, ये मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है दोबारा से. ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो यहां पे, if you try to look at it, यहां पे कोई चीज है पंखे की तरह. ठीक है, इस तरह से
ये कैथोड है। अब आप इस डायग्राम को अगर देखो केयरफुली तो यहां से कोई लाइट निकल रही है और यहां पे ग्रीन ग्लो आपको दिख रहा है। A Crookes tube, light and dark electrons means cathode rays travel in a straight line from the cathode as shown by the shadow cast by the metal Maltese cross. मेटल का क्रॉस है ये, ठीक है। इसकी शेडो यहां पे बिल्कुल सामने दिख रही है। सो दैट मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। ये कैथोड था, वहां से लाइट निकले एंड इट्स कमिंग लाइक दिस, तो शेडो बन रही थी, ठीक है। जब पावर ऑफ है तो कुछ नहीं दिख रहा है, जब पावर ऑन की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, तो हमें यहां पे शेडो दिख रही है बिल्कुल इसके सामने, राइट। क्रॉस की शेडो दिख रही है। और बोलते जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, ये शेडो शिफ्ट कर गई, ये शेडो ऊपर की ओर शिफ्ट होगी हल्की सी, देखो यहां से ऊपर को जा रही है, हल्की सी जा रही है शेडो ऊपर को, और यहां पे शेडो नीचे आ रही है। जब हमने मैग्नेट को रिवर्स किया, मींस जब पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो क्या हुआ, मींस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उसकी वजह से क्या हो गया, जो पार्टिकल्स थे वो डाइवर्ट कर गए, दे डाइवर्टेड। लाइट को थोड़ी होगा, लाइट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये क्या है, क्या कंक्लूजन निकल के आया, इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, दिस पार्टिकल में बी चार्ज्ड पार्टिकल, बिकॉज चार्ज्ड पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वो हमें पहले से पता था, करंट की भी तो लोग बात कर ही रहे थे। समझ आ रही है कुछ बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा हुआ है, मैक्सवेल थ्योरीज वगैरह वो सारी बड़े पहले की हैं, इससे पहले की हैं, कैथोड रेज की डिस्कवरी से पहले की। सो दैट मींस अब ये कंफर्म हो गया दैट दीज आर पार्टिकल्स। और कैसे पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें निकल के यहां से पता चलती है। क्लियर, एंड दिस इज वेरी fascinating story. So I think this is all for today, and tomorrow I will talk about other subatomic particles, and then after talking about those subatomic particles I will switch over towards the subnuclear particles. So पहले हमने ये हिस्ट्री समझनी है थोड़ी सी कि लोग कैसे प्रोसीड कर रहे थे, ठीक है, because it's a very wonderful journey to peeping inside the atom and the nucleus, right? So I think that's all for today, and you can ask now any question.